हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड जीके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे योजना मैगजीन का अगस्त 2021 एडिशन, जिसका विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लीड आर्टिकल्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, स्पेशल आर्टिकल प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस और फोकस रहेगा आईएफएस द कंटिन्यूइंग अलायंस पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको योजना मैगज़ीन की या कुरुक्षेत्र मैगज़ीन की हिंदी या इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिविल सर्विस एग्ज़ाम प्रिपरेशन इज़ अ मैराथन रेस एंड इट्स रेस फॉर विक्ट्री। तो यहाँ पे दिया गया है हार्ड वर्क, motivation, time management, dedication, determination, self-confidence, systematic planned studies, positive attitude, patience, optional selection, smart study। So ये सब सक्सेस मंत्रास दिए गए हैं। These are the success mantras of victory in civil services examination। आगे हम देखेंगे स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि एन एस्पिरेंट शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि प्री से पहले हमें मेंस के लिए सोचना पड़ेगा, मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट टिप्स टू क्रैक सिविल सर्विसेज। फर्स्ट, मेक अ वर्केबल टाइम टेबल फॉर स्टडीज एंड स्टिक टू इट। टाइम टेबल बनाना और उसे फॉलो करना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिविल सर्विस क्रैक करने के लिए। रीड द सिलेबस थरोली एंड कवर इट, लिविंग नो पोर्शन, मेक क्वालिटी नोट्स। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप फर्दर नॉलेज लेवल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। Understand the concepts and the facts for the exam point of view to take on its applied nature. Go through the previous year question papers and analyze them. Mock test must be attempted chapter wise as well as subject wise. This will give a real feel of the actual exam and also help for any midway correction. Try to attempt previous year question papers of general studies papers that will help you find out your weaknesses. Revision is the most important factor while preparation. Never explore new subjects in the last 1 month. This 1 month should be kept for revision only. Revise, revise, revise. To CSAT is Though CSAT is qualifying in nature, this paper should be taken seriously. Read news and current affairs regularly and update the subject as well as national and international events. The preparation strategy should be structured, and if you're going for the broad exam next day, that's the level of preparedness required. Recall the subject studies in the whole day before going to sleep, as this will reinforce your memory multiple times. This is the most important aspects to boost your memory. Preparation for general studies paper 1 in the preliminary should be carried out by keeping in mind the main exam। ये मैंने पहले बताया था कि प्रीलिम से पहले हमारा मेंस का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आगे देखेंगे डूज एंड डोंट्स इन सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम। नेवर वरी अबाउट द एग्जाम as not going to help you. Never lose confidence level during preparation. There may be difficulties like mood swings, but win over them to achieve success. Don't worry about the level of preparation if you are through with the syllabus. Don't commit
Less mistakes in the OMR sheet. Read all choices before answering. Read the instructions given by UPSC carefully. अब हम देखेंगे strategy for optional selection. Go with interest, subject background in the graduation. The subject need not be the same as your degree. तो ये पॉइंट्स आप PDF पे पढ़ सकते हैं. PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे दी जाएगी. Strategy for means examination. Make a proper study plan first and stick to it. Prepare current affairs daily and keep it updated. Should be consistent in preparation, sufficient time for all subjects, keeping the marks allotted for each paper. Timetable should be consistent so one can study without boredom. तो ये पॉइंट्स भी सब बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इसे पढ़ सकते हैं. PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी. आगे दी गई है टिप्स फॉर एसे राइटिंग. स्ट्रेटेजी फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट. Filling service preference in the detailed application form of main application. Some more facts to be understand. तो देखते हैं one by one. One is required to write 2 essays for 3 hours duration. Remember to divide an essay into 3 parts. That is introduction, main body and conclusion. The choice of topic on which the essay is to be written after careful thought. While selecting a topic, the knowledge based of topic, that is how much you know about the subject, is of crucial importance. If you have data or statistics your fingertips to back some statement, आपको टॉपिक की डीप नॉलेज होनी चाहिए. तो सेम पॉइंट्स आगे भी दिए गए हैं. पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए स्ट्रेटजी और मेंस एप्लीकेशन से पहले डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ले सम टिप्स. तो अब हम देखेंगे योजना मैगजीन का पहला आर्टिकल है इंडियन ब्यूरोक्रेसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. तो चलिए देखते हैं. द रॉयल चार्टर गेव ईस्ट इंडिया कंपनी द पावर टू रेज कैडर ऑफ ट्रूप्स बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पज. तो यहाँ होती है हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया की शुरुआत. दीपक गुप्ता जो कि एक फॉर्मर IAS ऑफिसर है, उनकी बुक द स्टील फ्रेम अ हिस्ट्री ऑफ द IAS में दिया गया है कि कैसे IAS ऑफिसर जो कि पहले ट्रेड ऑफिसर्स के नाम से जान जाते थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में ट्रांसफॉर्म हुए. इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दी गई है. ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स देयर वेर डिटेल्स डिस्कशन and arguments about the continuity, the role of loyalty of Indian civil servants, whether it was wise to continue the same system in post-independence. Sardar Vallabhbhai Patel, who almost single-handedly responsible for setting up civil services in independent India, therefore rightly called Iron Man of India. अब देखेंगे अर्ली इंडियंस इन द सिविल सर्विसेज. सबसे पहले भारतीय जो कि सिविल सर्विसेज क्वालिफाई हुए थे वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर जी. 1864 में सत्येंद्रनाथ बैनर्जी ने ICS एग्ज़ाम क्लियर किया था. लेकिन जब तक 1992 में मॉन्टेग्यू जेल लेकिन जब तक 1922 में के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स नहीं लाए गए, तब तक ये एग्ज़ाम लंदन में कंडक्ट की जाती थी और वहाँ इंडियंस को एग्ज़ाम क्लियर करने से बहुत विरोध किया जाता था. इसके साथ और कई व्यक्ति हैं जैसे कि बिहारी लाल गुप्ता, रमेश चंद्र दत्त,
जो कि आगे चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने 1899 में, और जिन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब भी लिखी। ये भी इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर कर चुके थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर तो कर ली थी, लेकिन वो कभी इंडियन सिविल सर्विस में ज्वाइन नहीं हुए। सर पेनगल नारासिंगा राव was another eminent personality among the ICS, who was appointed as the constitutional advisor on 1 July 1946 or before India became independent. तो सर बेनेगल नारसिंगा राव ये भी ICS बने थे और उन्हें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया गया था। इनके अलावा सुकुमार सेन, जो कि इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और बाद में वो सूडान के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने। अगला सब पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिविल सर्विसेज। आर्टिकल 310, 311, 312 of the Indian Constitution pertains to services under union and states. ये बहुत important point है। Article 310 enshrines that civil servants of union and all India service are appointed by President of India, and civil servants at the state level are appointed by the governor of the state. They continue to hold office as per pleasure of the president and governor respectively. Therefore, they have the security of tenure. Article 311 mentions the procedures, conditions for removal, dismissal from service, and reduction in rank, thus ensuring due process of law. यह भी एक important point है। आगे देखेंगे, this ensures the civil servants are protected from political interference and undue harassment. Article 312 lays down all India services of India. The Union Public Service Commission, that is UPSC, and State Public Service Commission are constitutional bodies. हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे भी मनाया जाता है, to call on civil servants to renew their dedication and commitment to public service and excellence work. सिविल सर्विस ऑफिसर्स की डेडिकेशन और कमिटमेंट को देखकर यह सिविल सर्विस डे ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है। सिविल सर्वेंट्स एज अ रोल मॉडल फॉर यूथ। सिविल सर्वेंट्स एज अ रोल मॉडल फॉर यूथ। भारत में लाखों विद्यार्थी हर वक्त सिविल सेवा परीक्षा पास करने में लगे रहते हैं। इन स्टूडेंट्स के सिविल सेवा में आने के अपने अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जाने माने सिविल सेवा अधिकारी का अनुकरण करने, उसे फॉलो करने की प्रबल इच्छा होती है। उसे सही और सटीक उदाहरण है 1956 बैच के लोकप्रिय IAS अधिकारी SR शंकरन। उनका नाम उन गिने चुने सिविल सर्विस अधिकारियों में है जिनकी प्रतिमा बनाई गई है, और उनका नाम आंध्र प्रदेश के घर घर में लोकप्रिय है। बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी समाप्त करने की दिशा में उनके प्रयास और बेहद गरीबी में जीवन जी रहे लोगों के
उत्थान के कार्य में उनकी ज़बरदस्त पहल को समाज में के सभी वर्गों के लोगों ने सहारा है। और विशेष रूप से उन्होंने जो सफाई कर्मचारी आंदोलन चलाया था, उससे तो सभी उनके प्रशंसक बने हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के पिता बीएन युगंधर भी ऐसे ही सिविल सेवा अधिकारी थे जिनकी बड़ी संख्या में लोग प्रशंसा करते थे। 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर चावल उपलब्ध करवाने की योजना से जल संरक्षण विकास योजनाएं चलाने और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के युवा प्रशिक्षुओं के मार्गदर्शन जैसे महत्वपूर्ण प्रयासों के कारण ही उनका नाम आज भी सत्ता के गलियारों में अत्यंत सम्मानपूर्वक लिया जाता है। एक ताज़ा उदाहरण के तौर पर आईएएस अधिकारी मधुकर शेट्टी अभी कुछ वर्ष पहले हमारे बीच से सदा के लिए चले गए। लोकायुक्त के रूप में कार्यकाल के दौरान शेट्टी ने एक अन्य आईपीएस अधिकारी हर्ष गुप्ता के साथ मिलकर उन रईस किसानों का ज़बरदस्त विरोध किया जिन्होंने गरीब ग्रामीणों की जीवन दाती ज़मीन पर जबरन कब्जे के लिए थे। इन दोनों अधिकारियों ने ग्रामीण लोगों की जबरन कब्जे की ज़मीन वापस दिलाई थी। उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए ग्रामवासियों ने गांव का ही नाम गुप्ता शेट्टी हल्ली रख दिया। अब बात करेंगे चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स इन द सिविल सर्विस। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास का सोशलिस्ट वेलफेयर मॉडल यानी कि सामाजिक कल्याण मॉडल अपनाया गया, जिससे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप की संभावना बहुत बढ़ गई। प्रशासन तंत्र को गतिशील बनाने के लिए व्यवहारिक सोच रखना और समानता तथा समभाव पर आधारित नीति पर चलना होता है। जनता की सेवा के लिए नियुक्त ऑफिसर्स को राजनीतिक मेलजोल या गठजोड़ अथवा राजनीतिक संबंध नहीं रखने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है डायनामिक्स ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की गतिशीलता। आधुनिक काल से पहले 7वीं सेंचुरी के दौरान तक हर कबीले का मुखिया उनका सरदार होता था। बाद में एक स्थानिक मालिक लोगों पे हुक्म चलाने लगा। इसी तरह राजशाही का सिलसिला शुरू हुआ। जन जागरण आने के साथ ही लोकतंत्र की स्थापना हुई। There was a need to objectively administer the day-to-day matters without favor or disfavor based on caste, class, race, gender, place of birth, language, and so on. Hence, Max Weber distinguished between 3 types of authority, that is legislative power. उन्होंने मैक्स वेबर जी ने लेजिस्लेटिव पावर का 3 अथॉरिटीज़ में डिफरेंट टाइप्स में विवरण किया। एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी which is based on succession, the next is ritual and subjective desire, etc. Charismatic authority which is based on gifted equality, example Swami Vivekananda, Lord Rama, etc. And national legal authority, that is bureaucracy. It was the most ideal type sought after because of its objective and rationality. He defined bureaucracy as formal organization which has following characteristics.
अब देखते हैं वन बाय वन. For first characteristics, formal selection and promotion based on well-defined norms, criteria, merit and transparency. Second is written rules, regulation, processes and procedures so that biases and personal likes dislike do not favor. तो ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए गए हैं. एक फॉर्मल सिलेक्शन जो कि सिलेक्शन प्रक्रिया को दर्शाता है, उसमें क्राइटेरिया और मेरिट बेस्ड फॉर्मल सिलेक्शन होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. और नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स, ताकि किसी के लाइक्स डिसलाइक्स के बिना पर किसी का सिलेक्शन ना हो. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हायरार्कियल स्ट्रक्चर, जिसमें सीनियर, मिडिल एंड जूनियर लेवल ऑफिसर्स, ताकि सीनियर ऑफिसर मिडिल ऑफिसर को इंस्पेक्ट कर सके और मिडिल ऑफिसर माइनर ऑफिसर को इंस्पेक्ट कर सके. तो ये है हायरार्कियल स्ट्रक्चर. अगला कैरेक्टरिस्टिक है स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ क्लियर बैलेंसिंग ऑफ टास्क, शेयरिंग एंड पावर. यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. स्पेशल डिविजन्स होना, ताकि हर काम को आसानी से और अपने तरीके से और टाइमली मैनर पे होना पॉसिबल हो सकता है. नेक्स्ट है प्रोफेशनलिज्म प्रिवेल्स ओवर पर्सनल विम्स. इसके बाद करियर ओरिएंटेशन टू हैव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी. ब्यूरोक्रेसी इज बाय नेचर permanent, a large period of career with different assignments, gain experience in diverse fields, being maturity for preparing a public policy. Profession is a keyword in civil services. It comprises 4 components in an integrated way. These 4 components are uniformity, neutrality, efficiency and anonymity. The career orientation with stability and continuity of civil services brings social equilibrium and preciseness. In particular, the All India Service, that is IAS, IPS and IFS, provide an opportunity to have a holistic national vision of development of all and unity in diversity. आगे देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल vehemently supported civil services in the Constituent Assembly on October 10, 1949, especially all India services on the following grounds. So what are the grounds? Let's see one by one. In a point of patriotism, in a point of loyalty, in a point of sincerity, and in a point of ability, you can't have a substitute. They are as good as ourselves. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग लॉयल्टी, पेट्रियाटिज्म, सिंसियरिटी, एबिलिटी. अगला ग्राउंड, सेकंड पॉइंट, आई डोंट डिफेंड ब्लैक शिप. If during the last 2 or 3 years the most of the services had not behaved patriotically and with loyalty, the union would have collapsed. See, I don't quarrel with the instruments with which you want to work. Without civil services, there would be chaos. If you want an efficient all India services, I advise you to all the services to open their month freely, to express their opinion without fear or favor. Today, my secretary can write a note opposed to my views. If you don't give your honest opinion for fear that it will
displease your master, please then you go better. I will not spare behaving or irritating civil servants. When the country is established and when it is strong enough, then they may be persuaded for the change. They are men who prefer honor, dignity, prestige, and deserve the affection of people. Hence, it is necessary to ponder over the above. Undoubtedly, these guiding principles are worth practice by the power that be. Yes, in is hardly followed.